Assalamu alaikum everyone. I'm Zubair Sleem and I'm going to discuss a question on IS 19 along with deferred tax implication. So let's start, guys. Guys, the requirement is explain how each of the above transactions should be treated in the financial statements for the year ended 30th September 2008. So he's asking you guys to explain. तो हम इस पे बात करेंगे कि explanation हमने कैसे करनी. Now, guys, B parties prepare an extract from the statement of P&L and other comprehensive income showing other comprehensive income for the year ended 30th September 2006. तो हम लोगों को extracts prepare करने हैं from P&L and other comprehensive income. Statement of financial position नहीं पूछा, तो that's okay अगर वो नहीं पूछ रहा. But most importantly, he is not asking to prepare the notes. Notes to the accounts required नहीं है, only extracts are required. तो workings हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं. हम लोगों को proper format follow करने की जरूरत as such नहीं है. So let's start, guys. Operating expenses in the draft account of Celia include 405,000 related to the company's defined benefit pension scheme. This figure represents the contribution paid into the scheme in the year. Guys, contribution paid defined benefit pension plan में कभी भी expense नहीं होता. डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान में आपका एक्सपेंस होता है करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, लेकिन कभी भी आपकी कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं बनता, ये आपके एसेट्स को इंक्रीज करता है. तो सबसे पहली बात जो डिस्कशन में हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि हम उसे समझाएंगे कि कंट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो आपने एलोकेट किया है इन पीएनएल, चार्ज किया पीएनएल, दैट इज रॉन्ग ट्रीटमेंट अंडर IS 19. नाउ गाइस, no other entries have been made related to this scheme. The figures included on the draft statement of financial position represents opening balances. These are opening balances on 1st October 2005. Is this ये आपके asset का value है, ये आपकी liability की value है, and we have deferred tax as well. Opening balance of deferred tax asset है, guys. This is important. After the year end, a report was obtained from an independent actuary. This gave valuation as at 30 September of pension assets का closing balance given है, pension liability का भी closing balance given है. We know we need to prepare an asset working reconciliation, liability की reconciliation and net भी reconciliation चाहिए. अब आप या तो net prepare कर लो, that would be okay, equally okay. Asset liability अलग-अलग prepare कर लो, that would also be equally okay. अब it's totally up to you कि आप इस working को कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ explanation मांगी है पार्ट ए में और बी पार्ट में extracts मांगे हैं. So he's not concerned with कि आप रिक्वायरमेंट की पेंशन एसेट की सेपरेट बनाते हैं, पेंशन लाइबिलिटी की सेपरेट बनाते हैं या नेट बनाते हैं. बट वी नो अगर हमें नोट्स टू द अकाउंट्स बनाने के लिए कहता है तो ये सेपरेट चाहिए और इन दोनों को नेट करके भी हमने दिखाना था. नाउ गाइस, वी हैव यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड. ये 10% हमें रिक्वायर्ड होता है टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स एज वेल एज ऑन टू कैलकुलेट द अनवाइंडिंग. Then guys, we have current service cost, हमें expense to liability entry आती है. Payment out of scheme related to employees transferring out. कुछ employees हम transfer कर रहे हैं उसको, उन लोगों को जो हमने pay किया है out of pension assets वो 400 है. Then guys, the next thing is reduction in liability related to transfer, that is 350. तो ये difference जो है that would be gain या loss on settlement. वैसे साफ पता चल रहा है कि assets में से 400 गया है, liabilities में से 350 reduce हुआ है, तो we are paying more. So this 50 will be charged to P&L as a past service cost. Here you can say gain and loss on settlement. Then guys, we have pension paid, जो benefit paid and that is 220. Benefit paid का आपने क्या करना, we have idea. All receipts and payments into and out of the scheme can be assumed to have occurred on 30th September X6. इसका मतलब है कोई भी चीज़ को टाइम, जब आप अनवाइंडिंग कर रहे हो और एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हो, उसको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको टाइम में पोर्शन करो फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशंस. Okay, now the next thing is Celia recognizes any gains or losses on remeasurement defined benefit pension plans directly in other comprehensive income in accordance with IS 19. Guys, ये IS 19 रिवाइज हुआ था 2011 में. उससे पहले there were 3 treatments जो के allowed थे regarding remeasurement gain losses. पहला ट्रीटमेंट होता था कि आप पीएनएल में चार्ज कर सकते हैं, दूसरा था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, और तीसरा था कि यू कैन अप्लाई 10% कॉरिडोर अप्रोच. अब कुछ लोगों को आंसर्स में नजर आता है पुराने आंसर्स में जो 2008-9 के क्वेश्चंस करेंगे कि 10% कॉरिडोर अप्रोच हुई है. तो आप लोगों के लिए ये एडवाइस है कि काइंडली 10% कॉरिडोर आप क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है तो उस तरह के क्वेश्चंस आपने नहीं करने हैं. जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें, यू नीड टू चार्ज री मेजरमेंट गेन लॉसेस ओनली टू OCI, दैट्स इट.
तो ओके गाइस, एक फैक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमें पता है सबसे पहले हमें पेंशन एसेट्स और लायबिलिटी की वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो ये मैंने पेंशन एसेट्स की वर्किंग बना ली, ये मैंने पेंशन लायबिलिटी की वर्किंग बना ली। ओके, देन आप करेंसी का साइन दे देंगे। करेंसी का साइन हमारे कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, पाउंड है, तो ले नेट भी बना सकते हैं, बट एक्चुअली नोट्स नहीं रिक्वायर्ड, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द नेट वैल्यूज। ठीक गाइस, हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू है दैट इज 1 अक्टूबर 2005 में जो साल के स्टार्ट का बैलेंस है वो हम लिखेंगे। वी हैव एसेट्स 2160, मैं 30 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये 30 कॉमन आ गई। नाउ गाइस, लायबिलिटी इज 2530। नाउ गाइस, हमारे पास सबसे पहले गिवन है यील्ड ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड। क्योंकि ट्रांजैक्शन सारी की सारी वो कह रहा है जूम करें ये रेंट पे हुई है, इसका मतलब है हम सिंपल इन्हीं ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर अनवाइंडिंग और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, अनवाइंडिंग और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट एसेट पे है और अनवाइंडिंग जो है वो लायबिलिटी पे है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 2160 पे मुझे अप्लाई करना है 10%, सो इट्स सिंपल वैल्यू 216 आ जाएगी वैल्यू। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें 10% इस पे अप्लाई करेंगे, वी विल गेट 253। डबल एंट्री क्या होती है गाइस, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट लायबिलिटी, डेबिट एसेट क्रेडिट इनकम, तो एसेट को बढ़ाना है इंटरेस्ट से, लायबिलिटी भी बढ़ेगी, और ये दोनों नेट बेसिस पे पीएनएल में चार्ज हो जाएंगे। मैं आप लोगों को पीएनएल में चार्ज करके भी दिखाऊंगा। ऑल्दो उसने सिर्फ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मांगी हुई है यहाँ पे, अगर आप गौर से पढ़ो तो सिर्फ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मांगी हुई है, बट वी कैन प्रिपेयर द पीएनएल एज वेल। ले बच्चों, ये हो गया। एंट्रीज में पास नहीं कर रहा क्योंकि मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं इस तरह के, तो मुझे एंट्रीज बना के दिखा के पोस्टिंग की जरूरत नहीं। नाउ गाइस, वी हैव करंट सर्विस कॉस्ट एक्सपेंस टू पेंशन लायबिलिटी होता है गाइस। तो जो आपकी करंट सर्विस कॉस्ट है दैट इज एग्जैक्टली 374। 374 आप उठाएंगे, एक्सपेंस टू लायबिलिटी होता है, तो 374 ये आप लोगों ने यहाँ पे चार्ज कर देना। ठीक, और साथ ही मैं इधर लिख लेता हूँ इसके साथ के पीएनएल में भी जाना है, ताकि एंड पे अगर मैंने पीएनएल बनाई तो मैं यहाँ पे वहाँ पे शो कर दूँ। पेमेंट्स आउट ऑफ स्कीम रिलेटेड टू एम्प्लॉइज ट्रांसफरिंग आउट, दैट इज 400, और जो लायबिलिटी में रिडक्शन आई है दैट इज 350। तो हम करेंगे क्या, डेबिट लायबिलिटी करेंगे बच्चों 350 से। सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस 350 से लायबिलिटी। एसेट रिड्यूस करेंगे क्योंकि पेमेंट आउट ऑफ द एसेट जो ट्रांसफर किया आपने दैट इज 400, तो यहाँ पे मैं 400 लिख दूंगा। तो ये जी, तो ट्रांसफरिंग एम्प्लॉयज़ या गेन लॉस ऑन सेटलमेंट, सेटलमेंट बोल सकते हैं, ट्रांसफरिंग आउट। ठीक, ये जी अमाउंट आ गई। अच्छा, 50 जो है ये दैट इज़ योर लॉस, लॉस है, और ये गेन लॉस ऑन सेटलमेंट भी एक्चुअली पास सर्विस कॉस्ट की होती है। सो ये लॉस ऑन सेटलमेंट विल आल्सो बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी आपने पीएनएल में चार्ज कर लेना। नाउ गाइज, वी आर डन विद दिस एज वेल। नाउ पेंशन पेड जो है, जो बेनिफिट पेड जो आप लोगों ने किया है दैट इज 220। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर बेनिफिट पेड, आपने एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट पे किया है, हमें पता है एसेट्स हमारे रिड्यूस होंगे बाय 220 एंड आर लायबिलिटी इज आल्सो गोइंग टू डिक्रीज, तो ये 220 इधर आ जाएगा। डेबिट लायबिलिटी किया मैंने, क्रेडिट मैंने पेंशन एसेट्स किए हैं। ओके, अभी तक गाइज देखें तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी हैव एनीथिंग एल्स, तो वो देखते हैं और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आप गौर करो तो कुछ भी नहीं है, बट वी हैव कंट्रीब्यूशन गाइस। उसने कंट्रीब्यूशन ये दिया था, तो जो पीनल में चार्ज हुआ गलत है। नॉर्मली कंट्रीब्यूशन की एंट्री जो होती है दैट इज पेंशन एसेट्स को आप डेबिट करते हो, क्रेडिट आप करते हो कैश, लेकिन कैश वो ऑलरेडी कर चुका है। उसने गलती क्या की थी, उसने ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू कैश कर दिया था। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्रेडिट कैश की जगह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे। अगर मैं प्रॉपर एंट्री दूं तो हमें पता है 405 इज योर कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन एसेट को बढ़ाएगा। दूसरी तरफ पीएनएल में कंट्रीब्यूशन जो एक्सपेंस चार्ज हुआ है उस एक्सपेंस को जाकर रिड्यूस करेगा। सो द कंट्रीब्यूशन वुड बी गाइस 405, और इससे आपके एसेट्स इंक्रीज हो गए। दैट्स इट गाइस, देयर इज नथिंग एल्स, कहानी खत्म। दो लाइन छोड़ के आप लोग यहाँ पे, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं, एंड देन द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी रीमेजरमेंट गेन लॉसेस। सो वी हैव बैलेंसेस ऑन 30th सितंबर गाइस। 30th सितंबर X6 के जो बैलेंसेस हैं, अब देखते हैं कि वो क्या है। गाइस वो गिवन है हमें 2090 इज द एसेट वैल्यू, 2090.2 आ रहा है, मैं थाउजेंड्स में ले रहा हूँ वैल्यू, और ये वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली 2625।
तो जो हमारी पेंशन लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 2625। तो ये इंफॉर्मेशन है गाइस। नाउ व्हाट वी कैन डू, जी सर, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने इन सब का टोटल करना है। हमें आइडिया है इस सब का टोटल जब हम लोग करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, और फिर उसे कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे क्या है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे पेंशन एसेट्स में जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है इस 2090 से। इन सबको टोटल करोगे तो गाइज ये बनता है तकरीबन 21 अराउंड 6 समथिंग। तो अगर मैं इसको टोटल करके डिफरेंस लेने की कोशिश करूं तो मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग अमाउंट चाहिए 70.8, और हमें पता है नेगेटिव इन पेंशन एसेट्स इज योर रीमेजरमेंट लॉस। तो ये मेरे पास रीमेजरमेंट लॉस आ गया है, नेगेटिव लॉस शो हो रहा है जी यहाँ पे। ठीक। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने गाइस, नेक्स्ट अब हमने सेम यही पैटर्न इस पे अप्लाई किया। जब हमने इन सबको टोटल किया तो ये एक वैल्यू आई है, और जब मैंने 2625 से कंपेयर की तो मुझे पता चला कि ये जो वैल्यू है ये शॉर्ट है। तो वी नीड लाइबिलिटी में पॉजिटिव वैल्यू विच इज़ 38। ये भी बैलेंसिंग अमाउंट है, तो इंटरेस्टिंगली ये पॉजिटिव है, लाइबिलिटी में पॉजिटिव है गाइस, लेकिन एक्चुअली दिस इज आल्सो लॉस। तो इसका मतलब है दोनों की दोनों जगहों पे लॉस है। एसेट्स का कम होना बुरा, ये भी लॉस, उधर से लाइबिलिटी का ज़्यादा होना लॉस, तो ये दो लॉसेस आपके पास आ गए हैं। इस पॉजिटिव से कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो लाइबिलिटी का बढ़ना लॉस है और एसेट्स का कम होना, तो ये दोनों के दोनों लॉसेस हमें पता है। इट विल बी चार्ज टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये तो गाइस था कि क्या एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे पीएनएल के और ओसीआई के एसेट से रिलेटेड। तो मैं एक्सट्रैक्ट्स प्रिपेयर कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर चीज़ सामने है हमारे। सो लेट्स सी जी, प्रॉपर आप लोग सारा सीलिया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर वो सारा कुछ लिखने के बाद ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज़ें चार्ज करनी है गाइस मैंने सेपरेट की हुई थी। करंट सर्विस कॉस्ट इज़ 374, तो ये आप लोग चार्ज कर देंगे 374,000। आपके पास आ जाएगी करंट सर्विस कॉस्ट। देन गाइस वी हैव पास सर्विस कॉस्ट, जिसे हम गेन या लॉस ऑन सेटलमेंट भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट टर्म एक्चुअली पास सर्विस कॉस्ट है। वो हमारे पास कितना था, 50 का लॉस था, तो वो 50 का भी एक्सपेंस था। देन वी आर गोइंग टू चार्ज नेट इंटरेस्ट हेयर। ये नेट इंटरेस्ट चार्ज करना है हम लोगों ने। नेट इंटरेस्ट वॉज 253 और 216 को नेट ऑफ कर लेंगे आप, जो भी अमाउंट आ रही है। आई एम नॉट यूजिंग कैलकुलेटर राइट नाउ, तो 253 माइनस 216 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आप गौर करोगे तो ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव, इन दोनों का डिफरेंस भी नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने उसने 405 चार्ज किए होते, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें से आपने जाके 405 लेस करा देना है, ताकि 405 उधर से लेस होके इधर आ जाए। ये आ चुका है इधर। तो ये आप लोगों की गाइस पी&एल बन गया। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हमें पता है वो पी&एल के नीचे भी हम बना सकते हैं। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो रीमेजरमेंट लॉस आ रहा है बिफोर बिफोर टैक्स, तो वो आ रहा है बच्चों रीमेजरमेंट लॉस। इन दोनों लॉसेस को आप कंबाइन करेंगे, और जब मैंने दोनों लॉसेस को कंबाइन किया 70.8 प्लस 38 पॉइंट 38, तो मेरे पास ये टोटल आएगा गाइज 108.8। 108.8 ये अमाउंट आ गई गाइज। अच्छा, अब टैक्स आप नेट ऑफ करके भी दिखा सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो एक्सट्रैक्ट्स का, तो नेट करके भी दिखा सकते हैं। लाइक मैं ब्रैकेट में लिखूं 108.8 और उसमें से टैक्स माइनस कर दूं, और इस टैक्स को आप सेपरेटली भी दिखा सकते हैं जो ओसीआई का आइटम है, तो मैं आप सेपरेटली दिखा दूंगा। तो ये गाइज अभी तक के एक्सट्रैक्ट्स हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स डेफर टैक्स इम्प्लीकेशन। सो नाउ गाइस डेफर टैक्स इम्प्लीकेशन के लिए अब हमें क्या करना है, वी नीड टू लर्न के व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स in the tax regime in which Celia operates. A tax deduction is allowed on a payment of pension benefits. No tax deduction is allowed for contribution made to the scheme. Guys, वो लोग pension benefit जब पे होता है तब वो allow करते हैं आपको deduction, उससे पहले कोई डिडक्शन नहीं है। इसका मतलब है रिलीफ आपको मिलना है जब आप पेमेंट्स कर रहे होंगे, लेकिन आप तो साथ साथ सारे एक्सपेंसेस रिकग्नाइज कर ही जा रहे हो। इसका मतलब है एक्सपेंसेस हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड। एक्सपेंसेस आप साथ साथ हर साल एवरी ईयर करंट सर्विस कॉस्ट के नाम से, नेट इंटरेस्ट के नाम से, एक्चुअल गेन लॉसेस के नाम से इधर इन पी&एल और ओसी आप रिकग्नाइज कर रहे हो। बट द रिलीफ वुड बी अवेलेबल इन फ्यूचर व्हेन द बेनिफिट्स वुड बी पेड। तो यार अगर फ्यूचर में रिलीफ अवेलेबल हो तो आपको क्या लग रहा है व्हाट वुड बी द बेनिफिट? तो आपको पता है कि ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस की एग्जांपल बनेगी।
दूसरे तरीके से अगर हम लोग समझें तो बच्चों अगर हमारे पास पेमेंट ऑफ पेंशन बेनिफिट्स, जब बेनिफिट पे होते हैं तब डिफीट होते हैं, इसका मतलब है कि जो डेफिट आपके पास जो पेंशन लाइबिलिटी है उसको वो नहीं मानते। वो पेंशन लाइबिलिटी को कहते हैं भाई कोई लाइबिलिटी नहीं है, जब आप पे ऑफ करेंगे तब देख लेंगे। इसका मतलब है पेंशन लाइबिलिटी की वैल्यू भी, आपकी टैक्स बेस भी ज़ीरो है, और पेंशन एसेट की टैक्स बेस भी ज़ीरो है। इसका मतलब है बच्चों एसेट्स के ऊपर डिफरेंस जो क्रिएट होगा, जब एसेट्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास टैक्स बेस जीरो है बट वी हैव कैरिंग वैल्यू। ये मेरी कैरिंग वैल्यूज हैं एसेट और लायबिलिटी की। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ज़्यादा होने से आपका टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आएगा, कैरिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ज़्यादा होने से डिडक्टेबल आएगा। लेकिन जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो अगर लायबिलिटीज ज़्यादा हुई तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस स्टैंड करेगा, और अगर एसेट ज़्यादा हुए तो आपका डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, सॉरी लायबिलिटीज ज़्यादा हुई तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा, और अगर एसेट ज़्यादा हुए तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा। अब इसको समझते हैं यहाँ पे अप्लाई करके एंड देन सी के क्या करना है। So guys, now I'm moving towards deferred tax implication on this question. So what I'm going to do, I'm going to take the carrying value of pension assets and pension liability, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस और कैरिंग वैल्यू ऑफ पेंशन लाइबिलिटी। अब लेट्स सी जी, नेट कर भी करके भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। आसान यही है कि आप लोग क्या करें, दी एसेट की वैल्यू देख लेते हैं। दी एसेट वैल्यू है 2090 बच्चों, तो 2090.2 इज द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट। लाइबिलिटी की कैरिंग वैल्यू देखी तो ये आ रही है 2625। जब नेट ऑफ करके देखा तो वी हैव अ नेट लाइबिलिटी बच्चों। तो नेट पेंशन लाइबिलिटी, नेट पेंशन डेफिसिट भी बोलते हैं इसको। तो नेट पेंशन डेफिसिट जो आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली जो हमारे पास आ रहा है दैट इज, जी गाइज ये आ रहा है 534.8। अब जी व्हाट इज टैक्स बेस गाइज, अगर हम लोग टैक्स बेस पे बात करें व्हाट इज टैक्स बेस, अभी बताया था टैक्स बेस जीरो होगी। तो टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट दोनों की जीरो है, तो ये टैक्स बेस जीरो है। अब मेरे भाइयों लाइबिलिटी की कैरिंग वैल्यू ज़्यादा होने पे जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 534.8। अब डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे अगर हम लोग टैक्स रेट अप्लाई कर दें वी विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ deferred tax asset. So we have tax rate, I think here is 30% tax rate for 2007 is 30%। तो इसका मतलब ये है कि यदि 30% इज़ द रेट, तो 30% जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो गाइज आपके पास आएगा डेफर टैक्स एसिड एग्जैक्टली 160.44। ये आपके पास आ गया जी, ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स एसिड। हाँ जी बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स एसिड ये है। अब देखते हैं जी इफ दिस इज द कैरी डाउन बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स। अब ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेंशन एसिड यहाँ पे गिवन था, दिस इज 121 एसिड है ये भी। तो एसिड है जी, ओपनिंग एसिड वाज आपका जो ओपनिंग बैलेंस था या ब्रॉड डाउन बैलेंस था दैट इज 121। आई थिंक इट्स 121, यस 121 गाइस। अब अगर आप दोनों का डिफरेंस देखो तो एसिड डेफर टैक्स एसिड इंक्रीज हो रहा है बच्चों। डेफर टैक्स एसिड कितने से इंक्रीज हो रहा है, 39.4 से। डेफर टैक्स का इंक्रीज जो है बच्चों ये आपकी डेफर टैक्स एक्सपेंस में रिडक्शन बनेगी, या इसको मैं कह सकता हूँ इनकम। ऑल दो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इनकम नहीं बोलना चाहिए, ओके आई एग्री इनकम नहीं बोलना चाहिए, आप एक्सपेंस में रिडक्शन बोल रहे हैं। नाउ गाइज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि हमने एक लाइन पढ़ी थी टैक्स एक्सपेंस या टैक्स इनकम जो होती है बच्चों, इट शुड फॉलो द ट्रीटमेंट ऑफ लाइन आइटम। अगर कोई चीज़ पी एंड एल में है तो उसका टैक्स भी पी एंड एल में जाना चाहिए, इफ कोई चीज़ ओ सी ए में जा रही है तो उसका टैक्स भी ओ सी ए में जाना चाहिए। अब ये बात हमें पता है, और अब हमें पता है कि पेंशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने ओसीए में चार्ज की हैं, कुछ चीज़ें हमने पीएनएल में चार्ज की हैं। तो व्हाट वी कैन डू, हमें यू नीड टू स्प्लिट, आपको इसको इनकम को स्प्लिट करना है कि कितना ओसीए में जाना चाहिए कितना पीएनएल में जाना चाहिए। हाउ वी कैन स्प्लिट, तो बड़ा आसान है, ओसीए वाला चार्ज कर लें और बाकी जो बच जाएगा पी एंड एल है। तो यही एक बेहतरीन तरीका है जो नज़र आ रहा है। तो लेट्स सी जी कि ओसीए में आपने नेट कितना चार्ज किया है। बच्चों नेट जो आपने ओसीए में चार्ज किया दैट इज़ 108.8, ये लॉस है, ये लॉस है, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि लॉस है। तो लॉस पे रिलीफ मिलता है आपको, ये भी इनकम है ये भी रिलीफ है। तो इसका मतलब ये है कि जो ओसीए में चार्ज करना चाहिए दैट इज 108.8 पे चार्ज करना चाहिए आपको।
108.8 पे आप लगाएंगे 30%। ये रिलीफ आउट ऑफ टोटल विच इज़ 39.4 ये चार्ज होना चाहिए ओसीआई को। दिस इज़ गाइस 32.64 ये आया। जो बाकी बचा दैट वुड शुड बी चार्ज टू पी एंड एल। जो बैलेंसिंग है दैट विल बी चार्ज टू पी एंड एल। ये पी एंड एल को चार्ज कर देंगे आप। दिस इज़ ओनली 6.8। अब मैं क्योंकि उसी है उसने मेरे से मांगा हुआ था, तो बच्चों टैक्स यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा दैट वुड बी 32.64 रिलीफ है। तो ये नेगेटिव है आपके लॉस, ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं और ये आपका, और इन द सेम वे यहाँ पे आप टैक्स दिखा सकते हैं कि टैक्स रिलीफ जो आपका आ रहा है दैट इज़ ओनली 6.8। तो गाइज दिस वाज द क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू जूम इट आउट फॉर यू गाइज ताकि आप देख सकें कि मैंने क्या किया है। दिस इज़ द होल क्वेश्चन गाइज। अब गाइस पार्ट ए में उसने एक्सप्लेनेशन मांगी हुई थी, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी चीज़ें पीएनएल में जाएंगी, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। यू नीड टू एक्सप्लेन दिस इन पार्ट ए। फिर डेफर टैक्स की इम्प्लीकेशन आपको बतानी चाहिए दैट वी नीड टू स्प्लिट। और फिर आपको बताना चाहिए कि डेफर टैक्स एसेड आ रहा है या डेफर टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है। तो ये वाली बात कि अगर लाइबिलिटीज ज़्यादा है तो इट वुड बी डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और अगर एसेड ज़्यादा हुआ है तो इट वुड बी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। थैंक यू सो मच गाइस।